This is Shivani Sinha once again, and here with a new subject, data communication and networking. In this subject, we are deals with the communication and the data communication throughout the networking, how it works and how we use network, what are the benefits and what are the other specific characteristics of the networks. Many students told me that ma'am, please elaborate these videos or PPTs in Hindi and English both. So I will try to mix these both, that all the students will get the pretty answers and the pretty will understand the concept of data communication and networking. So let's get this started. First thing is the introduction of this subject, that what is data communication and what is networking. It is very important to know the networks. नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए जाने के लिए. आजकल जितना भी काम हो रहा है, वट एवर वी हैव टू डू, लाइक ऑनलाइन क्लासेस या फिर हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, एवरीथिंग वी डू थ्रू दी नेटवर्क्स. So networking is very important, and data, whatever we are sending from one time to another, it is data. So data networking is very important, and the communication means जो हम लोग बात करते हैं throughout data, that is data communication. Okay, so the chapter itself named it's that data communication and networking. Right, so let's get the starting point is a system of interconnected computers and computerized peripherals such as printers is called computer network. This interconnection among computers facilitates information sharing among them. Computers may connect to each other by either wired or wireless media. Understand? Look, in this we have that a system, any computer which is interconnected with any computerized peripherals, any computerized other systems like printer is called network. Look, देखिए, that means कि कंप्यूटर में अगर हम लोग कुछ भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो कंप्यूटर पे हम डालते हैं और वो प्रिंटर से निकलता है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? देयर इज़ अ वायर कनेक्टेड, एक वायर कनेक्टेड होता है जो कि प्रिंटर से कंप्यूटर में थ्रू आउट कनेक्टेड रहता है. थ्रू दैट वायर वी कैन कनेक्ट द आवर कंप्यूटर टू प्रिंटर. ओके, तो इस जो नेटवर्किंग है जिससे हम कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं थ्रू प्रिंटर, इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग. दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, अंडरस्टैंड? द इंटरकनेक्शन अमंग कंप्यूटर फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग देम. क्या करेगा कंप्यूटर? क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है, एंड वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है. कंप्यूटर्स may connect to each other wired or wireless media. ओके, कंप्यूटर हम दोनों तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे शेयर कर सकते हैं अपना डेटा जो भी है वो? थ्रू वायर के साथ भी हो सकता है एंड वायरलेस भी हो सकता है. Like it is Bluetooth is also a part of networking. We can connect two mobiles to other systems through wireless. Okay, and like a printer is the example where we connect the system to another system through wire. That is wired and wireless network, isn't it? Now the next point is computer networks can be discriminated into various types such as client server, peer to peer or hybrid, depending upon its architecture. Look, everything is having some structure itself. That's why in computer networks also it is divided, it is discriminated into various types like client server, peer to peer और hybrid. Okay, इसका मतलब है
कि कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए हर चीज़ का एक नेटवर्किंग का एक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क भी हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में, लाइक क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन देयर आर्किटेक्चर, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज देयर कैन बी one or more systems acting as server, other being client, request the server to serve request. Server takes and process request on behalf of clients. Now here is a question that what is client and what is server, what is the working of these two in our network. So the main thing is that these two are the most important thing in networking. Like there is written here, there can be one or more system adding as server. सर्वर में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वर एंड क्लाइंट हमारे नेटवर्किंग के लिए। एंड सर्वर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। और अदर बीइंग क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्वर टू सर्व रिक्वेस्ट। देखो दो सिस्टम है, ओके, लाइक वन इज़ द क्लाइंट वन, दैट इज़ द यूज़र, जो कि मैं हूँ, जो मुझे यूज़ करना है। और इंटरनेट पे हम कुछ टाइप करते हैं, लाइक उस पर अगर हम लिखेंगे ओलम्पियाड या ओलंपिक, ओके, या फिर कुछ भी कि लाइक APJ अब्दुल कलाम, हम उनके बारे में सर्च करना चाहते हैं। वी वांट टू सर्च ऑन द APJ अब्दुल कलाम, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनकी लाइफ हिस्ट्री जानना चाहते हैं एंड एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे टाइप करेंगे गूगल सर्च में जा कर के, राइट। तो हम वो जाएगा और डायरेक्टली हमारे पास एक पेज खुलता है जिसके बारे में हमें विकीपीडिया रहता है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन वी गेट थ्रू इट। तो हम जो भेज रहे हैं वो कहाँ जा रहा है एंड वो आंसर हमें तुरंत कैसे मिल रहा है, डैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन नेटवर्किंग विच कम्स टू ऑल ऑफ आवर माइंड्स, ओके। किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूज़न ज़रूर आएगा। तो जो हम भेज रहे हैं, जो यूज़र है, ओके, दैट इज़ द क्लाइंट वन, उसे हम क्लाइंट कहेंगे। एंड जहाँ से हमें आंसर्स आ रहे हैं उसे हम सर्वर कहते हैं, करेक्ट। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, द अदर बीइंग क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर टू सर्व रिक्वेस्ट, ओके। क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है लाइक APJ अब्दुल कलाम, देन सर्वर हमें क्या करेगा, हमारे क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगा एंड वहाँ से हमारा क्वेश्चन रिटर्न जो है सो आंसर देगा। बहुत सारे फॉन्ट्स खुल जाएंगे, लाइक विकीपीडिया, बहुत सारे पेजेस वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। इट्स डिपेंड ऑन अस टू चूज़ एनी वन टू गेट द आंसर। दैट इज़ द थिंग बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, isn't it? Server takes and process request on behalf of client. The fourth point is two systems can be connected point to point or in back-to-back fashion. They both resides at the same level and called peer-to-peer, peers. Okay, yeah. Look, now we are talking about point-to-point networking or peer-to-peer networking. What is it? ये क्या होता है? तो जब दो सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है डायरेक्टली, विदाउट किसी सर्वर के, विदाउट किसी हब के, किसी भी अदर तीसरे पर्सन के बिना अगर कोई सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम और पीयर्स और पीयर टू पीयर सिस्टम, ओके। लाइक दो कंप्यूटर हमारे पास है एंड दोनों कंप्यूटर के पास में दो यूज़र है, दो इंडिविजुअल्स यूज़र है। देयर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल यूज़र्स बिटवीन अस विथ हैविंग देयर ओन डेस्कटॉप, देयर ओन सिस्टम, ओके। तो इसमें हमारा जो दोनों कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू वायर और थ्रू वायरलेस। देन अगर हम वन कंप्यूटर से कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा थ्रू IP एड्रेस एंड वॉट एवर दे हैव,
the system, but we have to take only two system in this which is interconnected with each other. सिर्फ दो ही सिस्टम लेंगे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर हम किसी उस दोनों में से किसी एक कंप्यूटर से सेंड करेंगे तो उसी कंप्यूटर में वो डेटा जाएगा जिससे कि वो कनेक्टेड है। अगर उसके पास में अगर दो तीन कंप्यूटर्स, दो तीन सिस्टम्स और भी रखे रहेंगे या मोबाइल गैजेट्स वट एवर दे आर, वहाँ पे हमारा नहीं जाएगा। ओके, लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ simple example of WhatsApp. We have to send the data of the individual number. ओके, हम किसी के कांटेक्ट पे कोई पर्सनली मैसेज करते हैं तो वो सिर्फ उसे ही मिलता है, उसी के नेटवर्क पे जाता है, ना कि दो तीन ग्रुप में चला जाता है या कहीं और चला जाता है। डैट इज़ द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। क्लियर? नाउ द थर्ड इज there can be hybrid network which involves network architecture of both the above types. Now there are a hybrid architecture of network also. We have the network architecture of both the above types. दोनों types के हो सकते हैं, point to point and peers type के. Okay. Now the next slide is the personal area network. There are many types of network, so we have to introduce with these types of network like personal area network, LAN, WAN, Bluetooth, internet. Okay, so let's get started with a very simple one, with a personal area network. तो personal area network क्या होता है? A personal area network is the smallest network which is very personal to the user. हमारे लिए बहुत ही छोटा नेटवर्किंग हम उसे यूज़ करते हैं, बहुत ही छोटा नेटवर्क को डेवलप करते हैं। क्यों डेवलप करते हैं? फॉर आवर पर्सनल यूज़। ओके, लाइक ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? हम अगर ब्लूटूथ से शेयर करेंगे तो उसका एक रेंज डिफाइंड है, वो काफ़ी दूर तक वो रेंज नहीं जाता है। अगर सामने बैठे हैं या फिर आई थिंक 1 मीटर और 2 मीटर की दूरी तक ही ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस मे इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस और इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइसेस। पैन, पैन का मीनिंग क्या हुआ? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, has connectivity range up to 10 meters. okay 1-2 मीटर नहीं, only 10 meters हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? पैन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस, ब्लूटूथ इनेबल हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर्स एंड टीवी रिमोट। सी we all are familiar with all these things like computer कीबोर्ड्स एंड माउस। वो वायरलेस भी हो सकता है एंड देयर आर वायरलेस कीबोर्ड्स, वायरलेस माउस ऑल्सो। ब्लूटूथ ऑफ कोर्स वी ऑल नो, ब्लूटूथ इनेबल हेडफोन्स एंड वायरलेस प्रिंटर, टीवी रिमोट। टीवी रिमोट को कभी वायर में नहीं देखा होगा आप लोगों ने। सो दीज आर दी थिंग्स विच इज़ कनेक्टेड विद द नेटवर्किंग, दैट इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत ही सिंपल है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ देयर इज अ सिंपल पिक्चर इज गिवन हियर दैट one is the laptop and one is the tab. No, sorry, there one is the mobile and one is the tablet. Okay, it's look like a tablet of course. Then what is the network between these two which is working? It is a Bluetooth. For example, Piconet is Bluetooth enabled personal area network which may contain up to 8 devices connected together in a master slave fashion. We can connect 8 devices with each other. Okay, but in a certain range amount of range. So it is a personal area network. Okay, now come to the next point, is the local area network. Local area network, a computer network snapped inside a building and operated under
single administrative system is generally termed as local area network. Usually, LAN covers an organization office, each school, colleges or university. Number of systems connected in LAN may vary from as least as 2 as much as 16 million. Look, we all are familiar with a Wi-Fi in our school, in our offices or in our colleges or in our hostel also. In some hostels are there where we use Wi-Fi also. Okay, so what we get that a computer network which are used in these organizations is called local area network. It is a locally used network. Okay, like Wi-Fi, which covers offices, LANs, schools, and a LAN local area network is a network which is connected with a wire. Okay, it is not Wi-Fi, I am mistaken here. It is LAN wire. We can hear about the LAN wire also. हम लोग ने LAN वायर के बारे में पता होगा, जो कि पोर्ट्स होते हैं दोनों साइड से एंड देयर इज अ सॉकेट टाइप ऑफ वायर, दैट इज़ अ LAN वायर. इन आवर कंप्यूटर लैब्स हम लोग सब जानते हैं और देखते भी हैं. द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विथ अ वायर or wire port, that is a LAN port, which are used to get the networking in our system, that is the LAN port. एंड उससे हम लोग यूज़ करते कहाँ यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे वो ऑफिस हो, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी. ओके, number of systems connected in LAN may vary from as least as 2 to as much as 16 million. हम LAN को काफ़ी कम लोगों में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 2 लोगों में भी यूज़ कर सकते हैं, 2 सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट वी यूज़ दैट LAN networking is 16 million. It is a huge amount. Okay. So LAN provides a useful way of sharing the resource between end users. The resources such as printers, file servers, scanner and internet are easily shareable among computers. Understand, we can share our documents, our resources with printers, file servers, scanner. We all know that. Okay, these are the things which we use with the help of LAN. We can use LAN for these things. Now the third point is LANs are composed of inexpensive networking and routing equipment. It is inexpensive, not very expensive. It may contain local servers serving file storage and other local shared applications. It mostly operates on private IP address, that is Internet Protocol address, and does not involve heavy routing. LAN works under its own local domain and controlled certainly. Look, LAN हम देखो, अगर LAN यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हर जगह उसका कनेक्टिविटी रहेगा. इफ़ यू वांट टू connect a system, a computer system, desktop or a laptop with LAN, then it is not possible that your mobile get automatically networked or get the internet. This is not possible. ये possible नहीं है. तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे LAN वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो हम कनेक्ट किए रहेंगे. एंड ये ऑपरेशन प्रोवाइड होता है थ्रू IP एड्रेस. IP एड्रेस क्या होता है, तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि हर सिस्टम का इंडिविजुअल होता है, अलग होता है. लाइक किसी कहीं जा रहे हैं हम, अगर किसी घर का एड्रेस है तो ही हमारा पोस्ट वहाँ तक पहुँचता है और किसी और जगह नहीं जाता है. दिस इज़ टाइप ऑफ IP एड्रेस विच वी हैव इन अ नेटवर्किंग सेक्टर. नेटवर्क में हमारे पास एड्रेस की जगह पे IP एड्रेस होता है. ओके, जो कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता है किस चीज़ में, नेटवर्किंग के लिए. देयर इज़ अ फिगर गिवन हियर, लाइक समथिंग लाइक कंप्यूटर्स
there are three type of computers system are there, a file server or something like printer, photo is given, right? So all of these are connected with a wire, that is the LAN wire, and it is called a LAN networking platform. Now come to the next, is a metro area network, metropolitan net area network, that is MAN. Don't confuse between PAN, MAN, WAN. Okay, all of these are different from each other. Don't get so panic about hearing that what is this ma'am, ये क्या है, LAN है, WAN है, MAN है. So it is a networking. Okay, we have to learn WAN also here. So first of all we have to understand what is MAN, that is metropolitan area network. Generally expands through a city such as cable TV network. It can be in the form of Ethernet, token ring, ATM or fiber distributed data interface, that is FDDI. तो ये क्या होता है, ये जनरली हमारे सिटी में एक्सपेंड किया कर सकते हैं, हम एक सिटी में एक्सपेंड इसको कर सकते हैं, इस नेटवर्क को फैला सकते हैं. लाइक केबल टीवी का नेटवर्क हम लोगों ने सबने देखा होगा, ब्लैक कलर की जो होती है मोटी वाली, उसी तरह की ये नेटवर्किंग होती है. ओके, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईथरनेट, टोकन रिंग, ATM और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, इन सभी के फॉर्म में हम देख सकते हैं उसको. Metro Ethernet, look, it is not internet, it is Ethernet. Okay, both are different from each other. Metro Ethernet is a service which is provided by ISP. This service enables its user to expand their local area network. For example, MAN can help an organization to connect all of its offices in a city. एक ही सिटी में अगर एक ऑफिस की 2-3 ब्रांचेस हैं, ओके, या स्कूल की 2-3 ब्रांचेस है, या कॉलेजेस की 2-3 ब्रांचेस है, एंड वी वांट टू कनेक्ट थ्रू अ सिंगल नेटवर्क, देन वी यूज़ MAN नेटवर्किंग, दैट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, और तो फिर मैन हमें कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिटी में, किसी भी पर्टिकुलर सिटी में कनेक्ट करने के लिए. किसको कनेक्ट करने के लिए, तो एक ही तरह के, मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है एक ही सिटी में, और तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं, तो हम सभी को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस नेटवर्क. बैकबोन ऑफ मैन इज़ हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स तुम लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी कि किस तरह के ऑप्टिक्स होते हैं. ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए दिया है. वी हैव टू फॉलो दिस सिलेबस एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स वट एवर इज कन्फ्यूजिंग केम हियर. लाइक फाइबर ऑप्टिक्स, दीज आर दी वायर्स. ओके, इट इज़ अ नेटवर्किंग वायर फाइबर optics which is used for the MAN networking. Okay, MAN works in between local area network and wide area network. देखो, wide area network, that is WAN, which we have to study further, and LAN networking, which we have already studied in our previous slide, right? इन दोनों के बीच में हमारा जो नेटवर्क काम करता है उसे हम कहते हैं MAN. MAN provides uplink for LAN and LANs to WAN or internet. Understood? Like metro area network is home, office, temple, and I don't know what the picture is this. I think office only. तो ये सारे को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. Now come to our next point is wide area network. As the name suggests, the wide area network WAN covers a wide area which may span across provinces and even a whole country. Generally telecommunication networks or wide area networks. Like देखो, अगर हम लोग टेलीफोन यूज़ करते हैं तो वो हर कंट्री का अलग अलग होता है. पहले वायर से करते थे, लाइक वायर करके बेसिक
टेलीफोन्स आते थे। तो इस तरह की जो नेटवर्किंग होती है वाइड एरिया नेटवर्किंग, तो इसे हम मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट आवर कंट्री। इसका कवरेज एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है थ्रू दी वायर। ये सारे जो भी मैंने नेटवर्किंग अभी बताए हैं, लैन, मैन, वैन, ये सारे नेटवर्किंग एक आर्किटेक्चर है। नेटवर्क है, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम लोकल यूज़ कर सकते हैं, एक कॉलेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक स्कूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और मैन होता है जो कि हम एक सिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसका रेंज एक सिटी तक होता है। और वैन ये हम थ्रू आउट एक कंट्री तक यूज़ कर सकते हैं थ्रू अ वायर। ओके, तो ये सब एक वायर नेटवर्किंग है, वायर्ड नेटवर्किंग है कि, या फिर हम लोग वायर को क्या तार कहते हैं ना, तार वाला नेटवर्किंग है। इसमें हम लोग कनेक्शन रखते हैं एक दूसरे से। ओके, जनरली टेलीकम्युनिकेशन जब नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, अगर हम टेली कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। टेली कम्युनिकेशन पहले का आप लोग देखोगे सबके घर पे ही होगा। बेसिक टेलीफोन्स वो एक वायर से कनेक्टेड होता था, लाइक केबल टीवी का जो वायर होता है, वो सारे क्या है, एक नेटवर्किंग कनेक्टिविटी है। These networks provide connectivity to MAN and LAN since they are equipped with very high speed backbone. WAN use very expensive network equipment, और WAN जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसका जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, दिस इज़ अ पिक्चर, लुक, in our left there are 3 computer systems, 1 server is there. In our right also we have 3, and in the bottom also we have 3 computer systems, and in the middle of this all are connected to the middle server, that is the network. What is it? It is a wide area network. लाइक इंडिया में हम कहीं भी एक दूसरे से थ्रू बेसिक कॉल्स हम बात कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? क्योंकि हमारा नेटवर्किंग जो है सो एक दूसरे से कनेक्टेड था थ्रू वायर। दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर नेटवर्क। व्हाट इज इंटर नेटवर्क? This concept is very useful and I think all of us are familiar with it. Look, see, a network of networks is called an internetwork, or simply the internet. Okay, we all know the word internet. Actually, we are living in the world of internet. It is the largest network in existence on this planet. Of course, we all know, हम सबको पता है कि ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है in this planet. Okay, internet uses TCP/IP protocol suite with use IP as its addressing protocol. लोग TCP/IP क्या है? तो ये होता है एक प्रोटोकॉल जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को एक दूसरे में सेंड करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और टू मेनी सिस्टम। TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, यूज IP एज इट्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। IP मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट यूज़ करता है किसी भी डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। प्रेजेंट डे internet is widely implemented using IPv4. IPv4 is the version of IP address. Don't get confused or panicked at what is IPv4. Because of shortage of address space, it is gradually migrating from IPv4 to IPv6. Look, IPv6 is the latest version of IPv4 or more modified from the IPv4 version of addressing. Correct. Internet is widely deployed on World Wide Web service. We all know www, that is World Wide Web.
तो क्या कह रहा है, इंटरनेट हमें इज़ वाइडली डिप्लॉयड on worldwide service, understand, using HTML linked page and is accessible by client software known as web browser. वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे गूगल क्रोम, मॉजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हम लोग सब ने अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में देखा होगा, अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए। तो वो सब क्या है, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। उसके थ्रू हम जब भी कुछ लिखते हैं या सर्च करते हैं तो ऊपर में HTTP दिखाता है, और वो जो पेज रहता है वो क्या रहता है, HTML। ये एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक इस लैंग्वेज से हम के थ्रू हम पेजेस बनाते हैं जो कि इंटरनेट पे हमें मिलता है। When a user requests a page using some web browser located on some web server anywhere in the world, the web server respond with the proper HTML page. जब भी हम यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़र अगर किसी वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम से कुछ भी सर्च करता है किसी भी सर्वर पे, किसी भी वेब सर्वर पे, कहीं भी इन द वर्ल्ड, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, एक प्रॉपर HTML मार्कअप लैंग्वेज का पेज मिलता है। जो भी जैसे हम लोग कुछ भी गूगल सर्च करते हैं तो दिखता है ना वहाँ पे गूगल, एक तरफ कुछ एक सर्च इंजन वगैरह, तो डैट इज़ द HTML पेज। द कम्युनिकेशन डिले इज़ वेरी लो, हमें कम्युनिकेशन डिले बहुत कम होता है, तुरंत क्विक आंसर होता है, इट इज़ अ फास्ट थिंग। Internet is serving many purpose and is involved in many aspect of life. Some of them are हमारे एक्चुअली हम लोग सबको पता है कि इंटरनेट हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट इन कोरोना वायरस जो हमारे पास पैंडेमिक हुआ है, इसमें भी हम डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं। सो इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देयर आर some platforms where we use networks like website, email, instant messaging, blogging, social media, marketing, networking, resource sharing, audio और वीडियो स्ट्रीमिंग। ये सारी चीज़ें हम नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो फिर इस वीडियो में अभी तक इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इस सब्जेक्ट पे बनेगा, मैंने अपलोड करना है, वो थ्रू आउट आपके सिलेबस पे होगा फ्रॉम दी चैप्टर 1। ओके, सो तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।